This is the torque speed characteristic. Torque speed characteristics of three-phase induction motor is coming non-linear. Initially, it is proportional, directly proportional, inversely proportional to slip. Then, during running condition, it is directly proportional to slip. Therefore, the characteristics is coming highly non-linear. Okay? Characteristics is non-linear. ये straight line भी नहीं है. It's just a curve. It's a curve. थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा, right? Torque speed characteristics of three-phase induction. We have derived the equation for starting torque. Starting torque equation is P is equal to 3 upon 2 pi ns by 60. ठीक है, E2 square R2 upon R2 square plus X2 square. Slip is equal to 1. Slip is equal to 1. Therefore, equation for starting torque is this. Equation for starting torque is 3 upon 2 pi ns by 60 E2 square R2 upon R2 square plus X2 square. Then running torque 3 upon 2 pi ns by 60 S E2 square R2 upon R2 square plus S X2 square. तो हमारे पास स्टार्टिंग टॉर्क का इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 फॉर रनिंग टॉर्क एंड थर्ड इक्वेशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क. Tm is equal to कितना? What is the value of Tm? 3 upon 2 pi ns. 3 upon 2 pi ns by 360. एंड ऊपर क्या था? E2 स्क्वायर बाय 2x2. याद है ना सबको? E2 स्क्वायर बाय 2x2. E2 स्क्वायर R2 बाय 2x2. इनफैक्ट R2 भी नहीं. ठीक है, this is the equation which we have derived in last class. ठीक है, this is the equation which we have derived in the last class. Starting torque P starting is equal to E2 square R2 upon R2 square plus. ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3. Now we have 3 equations. One is equation for starting torque, other is running torque, and third is maximum torque. Maximum torque comes at this position, Tm, and slip at maximum torque is Sm. And एक रिलेशन हमने और बनाया था, Sm, और you can say R2 is equal to Sm X2. ये भी एक रिलेशन. हमारे पास 4 इक्वेशन. ठीक है, वन इज स्टार्टिंग टॉर्क इक्वेशन, वन इज रनिंग टॉर्क इक्वेशन, वन इज मैक्सिमम टॉर्क इक्वेशन, एंड लास्ट इज R2 is equal to Sm. ठीक है, ऑल इक्वेशंस आर रिलेटेड विद ईच अदर. ठीक है, ये कोई डिफरेंट नहीं है, सब एक ही इक्वेशन से, एक वन फंडामेंटल इक्वेशन से डिराइव है. जैसे रनिंग टॉर्क ये इसमें S is equal to 1 डाल दें तो स्टार्टिंग टॉर्क आ जाएगा, एंड मैक्सिमम टॉर्क के लिए आप R2 is equal to Sm X2 पुट कर दोगे तो ये मिलेगा. This equation is very important, running torque. तो अभी ये हमारे पास हो गया है. ठीक है, और एक चीज हमने लास्ट क्लास में और देखा था कि अगर टॉर्क स्टार्टिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस R2. ठीक है, स्टार्टिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस R2. तो अगर आप रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाओगे तो स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ता है और R2 की पोजीशन शिफ्ट होती है. अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ाते हो, अगर रेजिस्टेंस रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाते हो, सपोज ये R2 है और ये R2 डैश है, तो इफ यू ऐड रेजिस्टेंस इन द रोटर सर्किट, इफ द रेजिस्टेंस इज एडेड इन द रोटर सर्किट, द वैल्यू ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीजेस एंड पोजीशन ऑफ मैक्सिमम टॉर्क शिफ्ट्स टुवर्ड्स द स्टार्टिंग पोजीशन.
मैक्सिमम ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क शिफ्ट हो रहा है और स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ रहा है। ये कंक्लूजन आपके दिमाग में रहना चाहिए। दिस इज सम लॉजिकल थिंग्स whenever you go for some analysis part of the machine, ये चीजें आपको पता रहनी चाहिए। Next check, sometimes question is asked, what is the relationship between running torque and maximum torque? Ratio of running torque and maximum torque. What is the relationship between ratio of running torque and maximum torque? Running torque and maximum torque के बीच में रेशियो क्या है? ठीक है, कभी कभी ये भी पूछा जाता है। ठीक है, रेशियो ऑफ मैक्सिमम रनिंग टॉर्क टू मैक्सिमम टॉर्क हमें क्या निकालना है? TR/TM। ठीक है, और कभी कभी पूछा जाता है, sometimes in numericals this data is given, the ratio of TR/TM क्या है और what is the voice is audible? Actually what happens, some internet problem is there. Okay, recording I will send. What we are interested in finding ratio of running torque to maximum torque. तो हमारे पास 4 इक्वेशंस है, 4 इक्वेशंस को सॉल्व करो। TR/T मैक्स करो, TR/T मैक्स करोगे तो क्या होगा? दिस बाय दिस 3/2 पाई ns/60, 3/2 पाई ns/60 कैंसिल हो जाएगा और E2 स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली क्या बचेगा? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, फाइनली क्या बचेगा? SR2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस SX2 स्क्वायर। ठीक है, और 2x2 नीचे का ऊपर चला जाएगा तो इंटू 2x2 हो जाएगा। रेशियो ऑफ रनिंग टॉर्क टू स्टार्टिंग टॉर्क, रेशियो ऑफ रनिंग टॉर्क टू स्टार्टिंग टॉर्क इज कमिंग टू SR2 अपॉन 2x2 upon R2 square plus x. Dividing equation 2/3. Just divide the equation 2/3. अगर आप equation 2 को 3 से डिवाइड करोगे तो you will get this. आप देख सकते हो carefully. You will get this expression. SR2 2x3 upon R2 square plus SX2 का होगा। अब now you can solve this. ठीक है, सॉल्व कर दो। आप इसमें से कॉमन ले लो। कॉमन क्या ले लूंगा? यहाँ पे मैं x2 कॉमन ले लेता हूँ, तो x2 कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा? 2SR2 बच जाएगा और नीचे अगर मैंने x2 स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा? R2/x2 का स्क्वायर प्लस s स्क्वायर। ठीक है, ऊपर x2 कॉमन लिया, नीचे मैंने x2 स्क्वायर कॉमन लिया। ठीक है, नाउ जस्ट कैंसिल करो। x2 एक x2 कैंसिल हो गया, ये x2 नीचे चला गया। फाइनली क्या बचा आपके पास? 2SR2/x2 R2/x2 का स्क्वायर प्लस s। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लेना। ठीक है, देन R2/x2 क्या होगा? SM। What will be the value of R2/x2? The value of R2/x2 is SM by equation 4. तो substitute SM। इसको मैं आगे अगर सॉल्व करता हूं मुझे मिलेगा 2SSM अपॉन SM स्क्वायर प्लस T/T max। ये रेशियो है T/T max, torque at running condition upon torque at maximum condition. Maximum torque is 2SSM by SM square plus S square.
इसको एस एस एम से डिवाइड कर दोगे तो थोड़ा सा एक अलग रिलेशन भी आ सकता है। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एस एस एम यू विल गेट 2 अपॉन एस एस एम से यहाँ भी डिवाइड करके मैं यहाँ भी डिवाइड करूंगा, एस एस एम से डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा एस एम बाय एस प्लस एस बाय एस। कभी कभी ये भी प्रूफ करो बोलता है, ये रेशियो आपको गिवन है बीएल थ्योरी के। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एस बाय एस एम यू विल फाइंड दिस रिलेशन। आप इसको इस इक्वेशन को केयरफुली देखो, इफ एनी यू आर हैविंग एनी डाउट और कंफ्यूजन तो आप पूछ सकते हो। रेशियो ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क टू मैक्सिमम टॉर्क इज कमिंग टू बी 2 अपॉन एस एम बाय एस प्लस एस अपॉन एस। तो रेशियो इज इंटायरली डिपेंडेंट ऑन स्लिप, रेशियो इज entirely dependent on sleep. One relationship we got, TR by TM is equal to TR by TM is equal to this. So similarly, you can find relationship between starting torque and maximum torque also. Similarly, you can find relationship between starting torque and maximum torque. ये आपका इक्वेशन हो गया। अब आप फाइंड करो। I hope so everybody has written this. Now find the relationship between starting torque and maximum torque. Relationship between starting torque and maximum torque. TST by Tmax. ये फाइंड करने की कोशिश करो। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 3 करो। 3 अपॉन 2 पाई एन एस बाय 60 कट जाएगा तो सब में कॉमन है। ठीक है, स्टार्टिंग टॉर्क 1 बाय 3 करो, 2 पाई एन एस भी कट जाएगा, E2 स्क्वायर भी कट जाएगा तो क्या बचेगा 2R2X2। राइट डाउन केयरफुली। फर्स्ट इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 3, 2R2X2 बाय R2 स्क्वायर प्लस X2। ठीक है, यहाँ पे S वगैरह नहीं रहेगा। R2 स्क्वायर बाय X2 स्क्वायर। अगर इन केस ऑफ आप इसको एसएम के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना चाहते हो, एसएम, ये फॉर्म हो गया। एसएम इज इक्वल टू क्या होगा R2 बाय X2। अगर एसएम के इसमें रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आप X2 कॉमन लो तो क्या हो जाएगा 2R2, और डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय X2 स्क्वायर से कर दो तो क्या हो जाएगा बाय X2 मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा R2 स्क्वायर बाय X2 स्क्वायर प्लस 1। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय X2, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय X2। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप X2 से डिवाइड करोगे। आप स्टेप्स थोड़ा सा लिख लो स्लोली, राइट डाउन द स्टेप्स। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय X2, you will find 2R2X2 by R2 square X2 square plus 1।
ये हो जाएगा 2SM बाय 1 प्लस, ठीक है। 2SM बाय SM प्लस 1 प्लस SM, ये भी एक रिलेशन है। तो रिलेशंस आर इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, इफ यू आर अपेयरिंग फॉर गुड एग्जाम्स, गेट, आईएएस वगैरह एग्जाम, तो ये सब रिलेशन आना चाहिए। रेस्ट theoretical part, n numbers of video lectures are available in YouTube. Construction, principal operation, how, what is induction motor, everything you will get in different books. But mathematical analysis is important. ये आपको करना आना चाहिए। ये आ रहा है, you are doing something, ठीक है। ये रिलेशन डेवलप करना, ये रिलेशन डेवलप करना, टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क इक्वेशन, रनिंग टॉर्क इक्वेशन, मैक्सिमम टॉर्क इक्वेशन, कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये एनालॉजी, इफ दिस एनालॉजी यू आर अंडरस्टैंडिंग फॉर 3-phase इंडक्शन मोटर, देन योर सब्जेक्ट इज क्लियर, यू आर इन पोजिशन, सब्जेक्ट आपका क्लियर है। अदरवाइज ऑलवेज यू विल बी रिमेन कंफ्यूज्ड। कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, हमेशा आपको क्लियर रहना चाहिए। If anybody having any doubt or queries, they can ask. Now one more relation is here. Starting and maximum हो गया ना, फुल लोड टॉर्क एंड मैक्सिमम टॉर्क भी हो गया आपके पास। फुल लोड टॉर्क एक रिलेशन हमने क्या बनाया, फुल लोड टॉर्क, रनिंग टॉर्क एंड मैक्सिमम टॉर्क, एंड स्टार्टिंग टॉर्क एंड मैक्सिमम टॉर्क, ठीक है। दो रिलेशंस आपके पास रेडी है। फुल लोड टॉर्क एंड स्टार्टिंग टॉर्क नहीं किया ना हमने, वी हैव नॉट टेकन द रिलेशनशिप बिटवीन फुल लोड एंड स्टार्टिंग टॉर्क, तो वो रिलेशन भी कर लो आप। ठीक है, you can go for that relation also, full load torque and starting torque. TR by TST, full load torque and starting torque, TR by TST. TR by TST करोगे तो this will get cancelled, 3/2 pi n s cancel, बचेगा क्या TR में S, E2 स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, R2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या S, यहाँ पे सिर्फ S बचेगा, एंड नीचे क्या बचेगा आपके पास, R2 स्क्वायर प्लस SX2 स्क्वायर, और ऊपर बचेगा R2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर कॉमन लो, आप कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, s, x2 स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस R2 x2 स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा, ठीक है। Then go and solve it. Starting torque, ratio of starting torque to, ठीक है। अगर आप एसएम की वैल्यू रख दोगे तो वहां पे एसएम रख सकते हो, ठीक है।
ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज टू सॉल्व न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस। ठीक है, आपको इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे थोड़े से डिटेल में। ठीक है, वन बाय वन टॉर्क के न्यूमेरिकल। फर्स्ट यू सॉल्व, ट्राई टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स ऑफ बीएल थेरेजा बुक। बीएल थेरेजा बुक ऑलरेडी मैंने भेजा है आपको व्हाट्सएप में। बीएल थेरेजा बुक से आप पहले सॉल्व प्रॉब्लम सॉल्व करो, और एक बार सॉल्व प्रॉब्लम हो जाएंगे तो देन यू गो फॉर अनसॉल्व प्रॉब्लम। ठीक है, एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट और क्यूरीज? अगर आपके पास कोई डाउट और क्यूरीज है तो यू कैन आस्क। ओके, दिस इज समवॉट वेरी इंपॉर्टेंट कि टॉर्क इक्वेशन को कैसे डिराइव करना, टॉर्क इक्वेशन को कैसे ऑपरेट करना। ठीक है, so this is very important. Now once the torque equation is developed, relationship between torque, slip, or in fact speed is developed. Now you are able to into position to control the speed of three phase induction. फिर आप स्पीड को कंट्रोल कर पाओ। अभी तक हम स्पीड कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ठीक है ना। Characteristics are very important. This is your characteristics. I already told you speed varies from 0 to ns and slip varies from 0 to 1. N is equal to 0 to ns. Speed is varying from 0 to ns, slip is varying from 0 to 1, and this position is of maximum. तो स्पीड, आपका स्पीड का रेंज है यहाँ पे, यहाँ पे वैरी करेगा। स्पीड जो चेंजेस होंगे आपकी इस रेंज में चेंज होंगे। ठीक है, दिस इज अनस्टेबल रीजन। कैरेक्टरिस्टिक्स का जो इनिशियल स्टेट होता है, मैक्सिमम टॉर्क, फिर मैक्सिमम देन रनिंग कंडीशन इज, दिस इज स्टेबल रीजन। एट वेरी क्लोज टू जीरो स्लिप जो वर्क करता है वो स्टेबल रीजन है। दिस इज अनस्टेबल रीजन। योर मशीन विल नॉट ऑपरेट एट दिस। आपका स्पीड जो वेरिएशन होता है इस रेंज में होता है। तो विल सी कि यूजिंग दिस टॉर्क इक्वेशन को देख के हम, अगर टॉर्क चेंज होगा तो आपकी स्पीड चेंज होगी। दिस इज द चेंज इन स्पीड, चेंज होती है स्पीड। चेंजिंग द टॉर्क यू कैन चेंज द स्पीड। तो टॉर्क इक्वेशन को देख के आप स्पीड को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट चेंजिंग टॉर्क यू कैन नॉट चेंज स्पीड। अगर टॉर्क कम होगा तो स्पीड, टॉर्क बढ़ेगा तो स्पीड कम होगी, अगर टॉर्क कम होगा तो स्पीड बढ़ेगी। इस रीजन, ठीक है। तो ओवरऑल आपको टॉर्क एंड स्पीड को कंट्रोल करना है। इफ यू वांट टू रन एनी ड्राइव्स, अगर कोई ड्राइव्स को चलाना है, यू हैव टू कंट्रोल टॉर्क एंड स्पीड। टॉर्क एंड स्पीड को आपको कंट्रोल करना ही पड़ेगा। ठीक है, इन दिस वे यू कैन कंट्रोल द स्पीड। विल टेक दिस इन नेक्स्ट क्लास। थोड़ा सा भी वो टॉपिक को, देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्पीड कंट्रोल एंड यूजिंग दिस टॉर्क इक्वेशन विल स्टडी द स्पीड कंट्रोल इन नेक्स्ट क्लास। अगर आपको कोई डाउट वगैरह है तो यू कैन आस्क। टुडे इंटरनेट कनेक्शन इज आल्सो वीक। आई डोंट नो माय वॉइस इज कमिंग क्लियर और नॉट। I will take attendance and I will in the next class.